Okay. Let me first share my screen. I hope my screen is visible to all of you guys. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, no problem. Let's just start. I hope you have completed the regular polygon, and if anyone is remaining to complete that polygon, please complete it by yourself. Only two sections are remaining: heptagon and octagon, right? Up to hexagon I have completed. Now moving further, I am starting engineering curves, right? In engineering curves I already told you the classification of engineering curves, that are basically engineering curves are divided into four different parts: conical curves, involute curves, cycloidal curves, and a spiral, right? In the conic curves there are five different subparts like triangle, circle, ellipse, parabola, and hyperbola, right? So triangle and circle everybody knows how to draw, and with any number of side or any number of radius, right? So we will start our session with ellipse, right? So in the ellipse there are total 6 methods to draw an ellipse, right? All the 6 methods are shown in this picture or in this slide. You can write it down with me. 6 methods are: first one is concentric circle method, second one is rectangle method, third one is oblong method, fourth one is arc of circle method, fifth one is rhombus method, and the last one is basic locus method, also known as directrix and focus method, right? These are the methods to draw an ellipse. हम ellipse को किस में अलग अलग मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी मेथड्स हम देखेंगे नेक्स्ट सब में. अब साथ साथ में आप ये भी methods for parabola and hyperbola, right? For parabola there are total 3 methods to draw a parabola. First one is rectangle method, second is method of tangents, also known as triangle method, and the third and the last one is basic locus method, also known as directrix focus method, right? And for the hyperbola, there are also 3 methods to draw it. First one is rectangular hyperbola, also known as coordinates given method, and the second one is rectangular hyperbola but with the PV diagram, and in this PV diagram you have given an equation, right? इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसकी हेल्प से आपको पीवी डायग्राम बनाना है और हाइपरबोला ड्रॉ करना है. एंड द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज द बेसिक लोकस मेथड, also known as a directrix and focus method, right? I hope you all are done the writing all the methods, all the names of methods. If anyone remaining, please capture a screenshot and then you can write it down, right? So let's just continue with the ellipse first. For the ellipse we are starting with the first method, concentric circle method, right? So I am taking one problem, and with this problem we will learn how to draw the ellipse with this method, right? So first of all we are writing down the definitions of ellipse, parabola, and hyperbola, right? So please write down the definition of ellipse, parabola, and hyperbola. I know I have also
explained this in the last lecture, but we will refer it once more, right? So what is the definition of ellipse, parabola and hyperbola? I have also learned and teach you the eccentricity, right? So these are the loci of points moving in the plane, that the ratio of it distancing from the fixed point and fixed line always remains constant. The ratio is called eccentricity, and the eccentricity will be always less than 1 for ellipse, always equal to 1 for parabola, and always greater than 1 for the hyperbola, right? Now let's just go for the problem for concentric circle method. So this is the problem. Draw an ellipse by concentric circle method. Take the major axis 100 mm and minor axis 70 mm. So when I have teach you the ellipse, then I have told you that in the ellipse there are total two axes are there. One is major axis and second one is minor axis, right? If I am talking about circle, then in the circle there are total one axis only. There are no major or no minor axis, right? Just a second, I have one call. Okay, this is the problem, right? Take major axis is equal to 100 mm and minor axis is equal to 70 mm, and draw an ellipse with the concentric circle method, right? So I have given the steps for drawing it. So first of all, you have to draw a major axis and a minor axis. Both axes are perpendicular to each other, right? So now I am drawing one line horizontally, A and B equal to 100 mm, and exact vertical perpendicular bisector to that line of C and D of 70 mm long, right? I hope my sound is loud and clear to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, प्लीज आप सब लोग ड्राइंग साथ में करते जाइए, तो आप सब लोगों को समझ में आएगा. सिर्फ देखते रहेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, बट बाद में आप भूल जाओगे. सो प्लीज ड्राइंग कंटिन्यू रखिए साथ में. मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर हो, प्लीज कीप द स्केच बुक एंड पेंसिल with you to write it down and to draw, right? So please draw two perpendicular bisectors of each other with 100 mm and 70 mm. AB line is 100 mm long and CD is 70 mm long. I also teach you how to draw a perpendicular bisector of any line, right? So are you done drawing it? Anyone completed?
Okay. Yes, sir. Okay, after completed this both perpendicular bisector, you have to draw a circles, right? Two concentric circles having same center point, the center point which is intersecting point of both lines, right? एक सर्कल ऐसा ड्रॉ कीजिए जो सी एंड डी पॉइंट में से पास हो रहा हो, एंड वन सर्कल will be passing through point A and point B, right? So basically you have to draw a circle of 70 mm diameter and 100 mm diameter from the center point, taking radius 50 and 35 respectively. प्लीज सर्कल जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना. फ्री हैंड स्केचेस ड्रॉ नहीं करना. Right? So after drawing these both circles, you have to divide these circles into 12 equal parts, right? I have teach you how to divide a circle into 12 equal parts. You have to divide it like this in 12 equal parts, 30 degree of degree divisions, right? Of 360 degree total. If किसी को समझ में नहीं आ रहा है, please ask the questions. Do not hesitate to ask the questions anytime, any number of times, right? Please ask the questions if you do not understand what I am saying, right? You have to draw 12 equal parts of these circles, right? Anybody completed? Anyone? Sir, 1 minute more. Okay, no problem. I have that's why I have teach you how to divide 12 equal parts or 9 equal parts or 8 equal parts of any circle, any line, because these methods are always useful in any drawings, right? If I directly start the problems of ellipse and hyperbola, then you don't understand how to divide 12 equal parts of any circle. That's why I have first teach that topics and then I have come to the problems, right? So कोई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि क्या सीख रहे हैं, किसी सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये थोड़ी ना होता है. बट ऐसा नहीं है, वो सब छोटे छोटे स्टेप्स थे जो आपको बड़े प्रॉब्लम्स में यूज करने हैं.
Done, sir. Okay. After completing it, you have to draw vertical lines downward and upward respectively, right? कैसे ड्रॉ करना है और कहाँ से ड्रॉ करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उसको पहले नंबरिंग दे दीजिए। देन यू जो नंबर्स मिल रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ए एंड बी, अब जो 10 नंबरिंग्स है वो सब वहां पॉइंट से आपको इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। फॉर अपर हाफ पार्ट यू हैव टू ड्रॉ डाउनवर्ड साइड लाइंस एंड फॉर below hemisphere you have to draw upward lines, right, like this from every point. From the outside circle, keep remember outside circle, जो बाहर का सर्कल है उसमें जो आपको पॉइंट्स मिले हैं सर्कल के ऊपर, वहां से आपको वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। ऊपर का जो हेमिस्फीयर है ए बी लाइन के ऊपर वाले नंबर्स वहां पे लाइन नीचे की तरफ खींचनी है सर्कल के अंदर, और ए बी लाइन के नीचे का जो हाफ सर्कल है वहां पे से आपको ऊपर के साइड लाइन खींचनी है। इस तरीके से लाइन रखनी है कि वो लाइंस सर्कल के अंदर रहो और थोड़ी लंबी रहे, राइट। स्केल की हेल्प से आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो उसका लेंथ फिक्स नहीं है, किसी भी लेंथ की आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। रैंडम लेंथ यू कैन टेक रैंडम लेंथ एंड ड्रॉ दिस लाइन, राइट। आफ्टर कंप्लीटिंग इट you have to draw a horizontal lines from the inner circle। जो आपका अंदर का सर्कल है वहां से आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है लाइक दिस। जो अंदर के सर्कल के आपको पॉइंट्स मिले हैं वहां से आपको लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कि वो जो वर्टिकल लाइंस है उसको इंटरसेक्ट कर पाए, राइट। So basically you have to draw vertical lines from outer circle and horizontal lines on the inner circle in a such a way that both lines intersect with each other। नंबरिंग आपने अच्छे से दिया है तो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। 1 को 1 के साथ इंटरसेक्ट करना है, 2 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ, 5 को 5 के साथ, 6 को 6 के साथ, 7 पॉइंट को 7 के साथ, 9 to 9 एंड 10 to 10, राइट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है और जो वर्टिकल एग्जैक्टली लाइन है उसमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि वहां से आप ड्रॉ करेंगे तो दिखेगा भी नहीं, राइट। जैसे ही कंप्लीट हो जाए प्लीज टेल मी। Done, sir. ओके, देन आफ्टर इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट्स, जो आपको पॉइंट्स मिले इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिले उसको मार्क करना है। किस तरीके से, याद रखना जो इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट्स को मार्क करना है और जो वर्टिकल लाइंस आती है वहां पे जो इनर सर्कल है वहां पे पॉइंट मार्क करना है। इनर सर्कल को जो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करती है वहां पे, बाकी पॉइंट टू पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में आउटर सर्कल जहां पे टच हो रहा है वहां पे लाइन पॉइंट बनाना है, राइट। एंड सेम वे इन द डाउनवर्ड साइड वापिस से वर्टिकल लाइंस आती है तो इनर सर्कल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे, एंड फॉर द लास्ट वन आउटर सर्कल, राइट। इस तरीके से आपको टोटल 12 पॉइंट्स मिलेंगे। यू विल गेट टोटल 12 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल
right? 5 above, 5 below, and 2 on the horizontal line, point A and point B. After you will get this point, you have to just free-handedly match these all points, right? You can free-handedly match these points, or you also can take help of the irregular curves, राइट जो कर्व्स आपके पास अगर है किसी के पास तो उसकी हेल्प भी ले सकते हो, अगर नहीं है देन यू कैन ड्रॉ इट्स फ्री हैंडेडली, किसी कंपास की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप फ्री हैंडेडली सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, देन यू विल गेट इलिप्स of major axis 100 mm and minor axis of 70 mm. जो आप इलिप्स का कर्व ड्रॉ कर रहे हो उसको थोड़ा स्मूथ रखने की ट्राई करना, हम स्ट्रेट लाइन से पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा कर्व की हेल्प ले सकते हो, ऐसा लगना चाहिए कि इलिप्स है, राइट? जितना पॉसिबल हो सके स्मूथ कर्व ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए। Understood? Anyone completed? Yes, sir. sir. Okay, very good. जो जिन जिन लोगों का अभी कर्व ड्रॉ करना बाकी है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कंप्लीट इट when in the free time. So now we will move forward. So first of all सबको कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड समझ में आ गई? किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No. Please feel free to ask if anyone have any doubt, any tiny doubt, right? So now moving forward for the second method. Second method was the rectangle method, right? So I am taking one problem. Problem is to draw an ellipse by rectangle method, taking major axis 100 mm and minor axis 70 mm, same dimensions, right? So first of all, for the rectangle method you have to draw one rectangle, right? To draw this rectangle, first of all you have to draw one line AB of 100 mm long and the perpendicular bisector of this line of 70 mm long, and name it as a AB line and CD line, right? अब जैसे ही हो जाता है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल में हम क्या करते थे, ये जो लाइंस मिले उसमें से हम सर्कल ड्रॉ करते थे, बट दिस इज रेक्टेंगल मेथड, तो बट ऑब्वियस वी हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल, राइट? So you have to draw one rectangle passing through point A, B, C and D.
Please tell me when you have done drawing, then we will move further. Done, sir. Done. Okay. So now for the construction of ellipse, you have to divide जो आप लाइन ए बी है उसके ऊपर का जो पार्ट है, अपर हाफ पार्ट, उसको सेम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट से उसको आपको डिवाइड करना है. लाइक दिस आई हैव डिवाइडिंग दिस पार्ट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट? You know how to divide any line into 4 equal parts, and नंबरिंग इस तरीके से देना है. फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट करना है आपको 1 2 3 एंड एट द कॉर्नर अपर लेफ्ट साइड नंबर 4, राइट? एंड सेम चीज आपको सेम नंबर ऑफ पार्ट्स आपको डिवाइड करना है पॉइंट लाइन ए बी पे, right? And you have to number it like this: 1 2 3 and 4. Hello, sir. Yes, yes. बोलिए બંને बोलिए. બાજુ સેમ ડિસ્ટન્સ બંને બાજુ સેમ नहीं, ડિસ્ટન્સ नो नो नो, રાખવાનું કે नहीं नहीं, सेम डिस्टेंस नहीं रखना है आपको. डिस्टेंस इस तरीके से रखना है कि जो लाइन है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो. उसके लिए वर्टिकल लाइन में जो पॉइंट्स है उसके बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल लाइन से वो डिफरेंस रहेगा, राइट? अगर देखा जाए तो ये वर्टिकल है, इस सब में डिस्टेंस सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस रहेगा एक दूसरे के बीच में. बट अगर वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात करें तो दोनों में डिस्टेंस का डिफरेंस रहेगा. सेम लाइन पे सेम डिस्टेंस मीन्स आपको क्या करना है, अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट रखता हूं तो ए टू सेंटर पॉइंट आपको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है उसको. और अगर वर्टिकल लाइंस की बात कर रहा हूं देन वर्टिकल में आपको ए टू ये कॉर्नर तक आपको 4 इक्वल पार्ट्स करना है, 4 इक्वल पार्ट्स, राइट? यस सर. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं साइड में, उसको भी रिफर कर सकते हो. इन फ्यूचर अब वापस से जब रीडिंग कर रहे हो तब आपको समझ में आएगा. राइट? जैसे ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यू हैव टू जॉइन द 1 2 3 4 पॉइंट्स टू डी पॉइंट लाइक दिस. जो वर्टिकल लाइंस है उस पॉइंट्स को आपको डी पॉइंट से ज्वाइन करना है, स्ट्रेट लाइन से. सर यस, सर तो फिर ये 100 mm और 70 mm है, उसका यूज कहाँ पर आएगा? 100 mm एंड 70 mm. आपने जो लाइन ए बी ड्रॉ किया है वो 100 mm है. लाइन ए एंड बी वो 100 mm मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है रेक्टेंगल का वो 100 mm है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है रेक्टेंगल का वो 70 mm है, सी टू डी. वो हमें हर बार सर दिया ही होगा क्वेश्चन में. हाँ, क्वेश्चन में हर बार आपको मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का डायमेंशन दिया होगा फॉर द इलिप्स, फॉर द इलिप्स पर्पस, राइट? इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर नहीं है तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो.
फॉर Yes. एग्जाम्पल आपको सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल का रेडियस या डायमीटर ही नहीं दिया है, तो आप सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे कि कितना बड़ा ड्रॉ करना, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, राइट। इसी तरीके से अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस नहीं है, देन यू कैन नॉट ड्रॉ an ellipse, right? So Okay. every time in every problem you will given the major axis distance and the minor axis distance. जैसे ही D पॉइंट से तीनों पॉइंट ज्वाइन हो जाते हैं, you have to join from the point C. ये आपका C पॉइंट है, वहां से स्टार्ट करना है और ये जो 1 पॉइंट है उसको इंटरसेक्ट करते हुए उस लाइन को आगे लेके जाना है। इस तरीके से आगे लेके जाना है कि वो ये 1 नंबर की लाइन है उसको इंटरसेक्ट कर दे, राइट। Then from the point C you have to draw straight line passing through point number 2 horizontally and vertical जो point number 2 की लाइन जा रही है उसको इंटरसेक्ट कर दे, वहां तक आपको उसको एक्सटेंड करना है, राइट। And same similarly from C2 passing from point 3 वहां तक जहां तक D and 3 को इंटरसेक्ट कर सके, राइट। याद रखना है ये हॉरिजॉन्टली पॉइंट से उसमें से पास होती हुई लाइन जानी चाहिए, और अगर 1 नंबर में से पास हो रही है तो यहाँ पे 1 नंबर की जो लाइन D के साथ इंटरसेक्ट कर रही है उसको वहां इंटरसेक्ट करनी चाहिए। 2 वाली लाइन नंबर 2 की और 3 वाली लाइन नंबर 3 की लाइन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए, राइट। If anyone doesn't understood that, they can ask the questions if you don't understood, right? सर Yes. सर ये जो लाइन हमने डिवाइड की पॉइंट्स में, वो हर बार 4 पॉइंट्स में डिवाइड हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना? जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से डिवीजन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपने हिसाब से अगर डिविजन्स लेने हैं देन यू कैन टेक इट, बट जो भी डिविजन्स लो, अगर वर्टिकली आपने 5 डिवीजन लिए फॉर एग्जांपल, देन यू हैव टू टेक अ 5 डिवीजन हॉरिजॉन्टली आल्सो, राइट। यस सर। बट ऐसा नहीं कि एक ही डिवीजन लिया, एक डिवीजन लोगे तो नहीं होगा। मिनिमम यू हैव टू टेक 3 or 4 divisions, right? Maximum as you want. You want to Okay. take 10 division, then you can, right? एक बात बता दूं, जितने डिवीजन आप ज्यादा लोगे इतना आपका जो कर्व है वो स्मूथ बनेगा, राइट। यहाँ पे 3 डिवीजन लिया है तो इस 4 डिवीजन लिया है तो उस तरीके से स्मूथनेस आएगी कर्व की, और अगर ज्यादा डिविजन्स लेंगे तो स्मूथनेस जो है वो कर्व की बढ़ेगी, राइट। सो नाउ गोइंग फर्दर, आपको पॉइंट्स मिल गए, राइट। तो स्टार्टिंग करेंगे हम पॉइंट ए से। ए है उसको एक पॉइंट देंगे, देन 1 पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको एक पॉइंट देंगे, 2 को, 3 पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, और लास्ट वन इज डी, राइट। तो आपका जो एक क्वाड्रेंट है उसका एक कर्व आपका मिल गया आपको इलिप्स का, राइट। इस तरीके से प्लीज ड्रॉ इट एंड एज यू कंप्लीट इट जस्ट इन्फॉर्म मी। Done, sir. Okay, now similarly in the next quadrant you have to
देखो यहाँ पे हमने 4 इक्वल पार्ट्स लिए, तो अब सारे क्वाड्रेंट में आपको 4 इक्वल पार्ट्स लेने पड़ेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में 5 इक्वल पार्ट्स लिए, देन यू हैव टू टेक 5 इक्वल पार्ट्स एवरीवेयर, राइट? So right now we have taken 4 equal parts, so we will continue with the 4 equal parts this side from point B to right side top corner, and number it 1 2 3 and 4. Similarly, in the horizontal line from B to the center point, you have to divide it into 4 equal parts and number it. Similarly, 1 2 3 and 4 will be at the center point, right? And repeat the same procedure. From the D you have to join vertical points 1 2 and 3, and then for the horizontal points you have to draw straight line from point C passing through the point 1 and intersecting at point 1 verticals, and similarly from point 2 and point 3, and give the points you are getting and complete the half curve. સર Yes. આપણે પછી એક્સ્ટ્રા લાઈન ઇરેઝ કરી શકીએ? Please do not erase the extra lines. Yes, जो एक्स्ट्रा लाइंस आपने स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन के लिए ड्रॉ किया है, देखो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मोड में लाइंस है वो लाइट लाइंस है। उसको ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डार्क करने की जरूरत नहीं है। वेरी लाइट लाइंस यू कैन ड्रॉ। You don't have to press pressure on the pencil, right? Very light colored line. Don't press the pencil to draw these lines, right? Thin line, अगर जो गुजरातीમાં કહું તો એકદમ પાતળી અને આછી લાઈન બનાવવાની, राइट? एंड जो इलिप्स है, जो मेन उसका पॉइंट्स एंड इलिप्स का कर्व, वही आपको डार्क पेंसिल से बनाना है, राइट? सो कंस्ट्रक्शन लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो उसको इरेज नहीं करना है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की होगी तो हमें पता चलेगा आपने किस तरीके से जो मेथड है उसको फॉलो किया है, राइट? आई होप हेमिस्फीयर जो हाफ अपर हाफ है आपका कंप्लीट हो चुका है सबका। कंप्लीटेड एनीवन? યસ સર. Okay, so now similarly for the second half. For the second half you can draw different parts from A to downward and then joint it with C से vertical lines and D से horizontal line को पास होते हुए आगे लेके जा सकते हो, right? Follow the same procedure for the downward side. Please complete it. नीचे का पार्ट ऐसे ही ड्रॉ नहीं करना है, आपको सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना है नीचे की साइड भी। हेलो सर। यस, नीचे कैसे किया वो समझ में नहीं।
ओके, सेम प्रोसीजर जो हमने ऊपर प्रोसीजर लिया है वो सेम प्रोसीजर आपको डाउनवर्ड साइड फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ इस साइड के कर्व की, तो यू हैव टू डिवाइड द लाइन ए टू, ये डाउनवर्ड लाइन जो वर्टिकल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, देन सी से मैच करवाइए उसको, एंड पॉइंट डी से लाइन खींचिए 1 को इंटरसेक्ट करते हुए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये अगर 4 पॉइंट है, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइंस लाइक दिस फ्रॉम द पॉइंट सी, एंड डी से स्टार्ट कीजिए 1 को इंटरसेक्ट करते हुए पॉइंट 1 तक। ये फॉर एग्जांपल 1 है, ये 2 है, दिस वन विल बी द पॉइंट 3, देन 2 में से क्रॉस करते हुए यहाँ तक, एंड 3 में से क्रॉस करते हुए यहाँ तक। जो पॉइंट मिल रहे हैं उसको मैच करवाइए और आर्क कंप्लीट कीजिए। सिमिलर वे क्वाड्रेंट नंबर 4 में भी, राइट? यहाँ पे भी ओके ओके, समझ में आ गया? यस यस। ओके, जैसे ही कंप्लीट हो जाए बोलना। હેલો સર. यस यस, સર આપણે એક્ઝામ્પલ 1 અને 2 માં જે રીતે લાઈનના 10 ને 9 ઇક્વલ પાર્ટ કર્યા તેવી જ રીતે આના 1 4 ઇક્વલ પાર્ટ કરવાના ને? યસ યસ યસ, જો આપણે એમાં એવું છે, જો તમારી પાસે મેજરમેન્ટ ન હોય લાઈનનું અને નોર્મલી તમે માપીને લાઈનના 4 ઇક્વલ પાર્ટ ન કરી શકતા હોય તો એ રીતે 4 ઇક્વલ પાર્ટ કરી શકો। પણ फॉर एग्जाम्पल लाइन ए बी, अगर लाइन ए बी को लेता हूँ तो मुझे पता है लाइन ए बी जो है टोटल 100 mm है। अगर मुझे 100 mm के 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो किस तरीके से कर पाऊंगा, राइट? अगर आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से सेंटर पॉइंट से ए की बात कर रहा हूँ तो ये 50 mm है। अगर 50 के मुझे 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो 12.5 mm का एक पार्ट होगा। सो इफ जो તમે ગણી શકો કે 12.5 નો એક પાર્ટ કરવું તો 4 ઇક્વલ પાર્ટ્સ થઈ જશે, then you can continue, राइट? इफ अगर आपको मिल जाता है कि डायमेंशन डायरेक्टली कि मुझे मैं 12.5 mm का एक पार्ट ऐसे 4 पार्ट कर सकता हूँ डायरेक्टली 50 mm का, देन यू कैन डायरेक्टली डू इट, राइट? बट अगर मैं वर्टिकली बात कर रहा हूँ तो वर्टिकल यहाँ से ए पॉइंट तक 35 mm है। अगर 35 mm के मुझे 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं तो नहीं हो पाएंगे डायरेक्टली, राइट? सो यू हैव टू फॉलो द मेथड्स विच we have learned before, right? Draw equal line and use the compass and draw the 4 equal parts. પછી છે સર એ મેથડ જે આપણે ડ્રો કરી છે આ Yes, હોરિઝોન્ટલ એ ચેકી નાખવાની ને? yes, वो रब कर सकते हो आप आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ वो मेथड ड्रॉ रब करना है। यहाँ पे जो ये लाइंस खींची है, यहाँ दिख रही है जो सारी लाइंस आपको, वो रब नहीं करना है, वो ऐसे ही रखना है सारी लाइंस। ઓકે સર, सिर्फ ये जो इक्वल पार्ट्स करने के लिए आप ये यहाँ से इस तरीके से जो लाइन खींच रहे हो उसको आप रब कर सकते हो। ये जो
सर्कल के अंदर जो है, ये रेक्टेंगल के अंदर जो भी लाइंस खींची है आपने, पॉइंट्स लिखे हैं, लाइन खींची है, वो सारी ऐसे की ऐसे रहनी देनी है। बट ध्यान ये रखना है कि ये जो मेन हमारा इलिप्टिकल कर्व है वो बाकी सारी लाइन से डार्क दिखना चाहिए। सो आपको स्टार्टिंग में से ही ध्यान रखना है कि बाकी सारी लाइंस जो है आप वेरी लाइट ड्रॉ कीजिए, उसको डार्क ड्रॉ नहीं करना है। लाइट हैंडेडली आपको उसको ड्रॉ करना है कि बहुत पतली पतली लगे हो। ये जो मेन कर्व है ड्रॉ कर रहे हो, उसको ही ड्रॉ करने के लिए आप फुल प्रेशर के साथ पेंसिल का यूज कर सकते हो। हो गया सर। यस, कंप्लीटेड, वेरी गुड। So today we will stop right here। आज हम दो ही मेथड कंप्लीट करते हैं, बाकी के इलिप्स के बाकी के मेथड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे, राइट? सो राइट नाउ सर यस सर यूनिट 1 में कंपैरेटिव स्केल है, उसके 3 प्रॉब्लम बाकी है, तो उसकी ये हमने स्केचबुक में जगह नहीं, देखिए कंपैरेटिव जो स्केल है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट्स के सिलेबस में रहता है कंपैरेटिव स्केल्स। वो आपको कंप्यूटर आईटी, उसमें इलेक्ट्रिकल या एग्रीकल्चर में या सिविल की बात करूँ उसमें नहीं आता है, राइट? तो ओके उसमें सर। आपको कंपैरेटिव स्केल जो है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग से ही आपको जो इन कोर्स का जो दिया है, आपको मैंने दिया है एनीवन आपको कोर्स भेजा था, उसमें कोर्स में कंपैरेटिव स्केल्स है ही नहीं। ये पीपीटी है, वो मेरे पास कॉमन पीपीटी है सारी ब्रांच की, सो इसलिए वो पॉइंट उसमें है, वो आपको नहीं आएगा, राइट? और उसकी जगह रखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके सर। Okay, so in this both method, anyone have any doubts? Then please ask. नो सर। Yes. No, So okay, if and all have understood very well, then we will complete our lecture right now, right here, and in the next lecture we will continue with the oblong method. Okay. So right now I am stopping my recording.